How many of you are still finding the purpose of your life? How many of you have got an aim in life? And how many of you believe that manifestations turn into reality? So today I am here to answer all these big questions through the 5 struggles of my life. So I started my journey from a small bedroom turned clinic where I had a one dental chair, an old showcase where my goods were lying, and a very old wooden table which was used by my mother-in-law once upon a time to knit the sweaters to support her family. So the money was less, patients were very few, passion to grow was enormous. तो सुबह 4 बजे का टाइम मुझे याद है कि हम सुबह 4 बजे उठते थे, पैम्फलेट छपवा कर वो अपने हैंड में पाइल्स पकड़ कर जाते थे, क्योंकि उस समय पर एक स्कूटर लेना भी एक लग्जरी होता था. सो मनी वॉज सो शॉर्ट कि स्कूटर का सोच के भी अच्छा लगता था. तो सुबह 4 बजे उठकर वो पैम्फलेट्स पाइल में लेकर हम वॉकिंग करके न्यूज़पेपर वाले वेंडर के पास जाते थे और न्यूज़पेपर्स के बीच में वो पैम्फलेट्स रखवाए जाते थे. और इसी तरह हमने बहुत सारे सोसाइटीज़ के साथ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, लायंस क्लब, भारत विकास परिषद, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने टाई अप किया. हमने सोसाइटीज़ में कैंप लगाए, वहाँ पे लोगों का दुख दर्द सुना, उनको थोड़ा अपना बनाया, उनकी ट्रस्ट जीती और उनके साथ एक कनेक्शन बन गया. और वो जो कनेक्टिविटी थी वो हमारी कम्युनिटी बन गई और धीरे धीरे वो कम्युनिटी बड़ी होने लगी, लोगों को ट्रस्ट जागने लगा. During that journey, I would say from one dental chair to many, and from one small dental room to an entire ecosystem, the journey has been beautiful. Growth resides behind your right actions, right intentions, and strong manifestations. And that is what I call the aim of life: actions, intentions, and manifestations. So I had stepped from my comfort zone of dentistry into the challenging world of aesthetics. So guys, I have been sculpting faces. I am into aesthetics from the past many years. I have been injecting faces and I have been making the faces beautiful. And the art I create is called confidence. The confidence which I see in the eyes of my patients when they get some work done, when they look younger, when they look more confident, more beautiful. So that is what makes my day. So I have been practicing aesthetics, and to learn aesthetics, to enter into aesthetics, I had taken the education from the world's best institutes in USA and UK. So I had left no stone unturned to do my studies, to do my training. और वहाँ से जब मैं इंडिया में करके आई तो यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट था. डेंटिस्ट वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट अ डेंटिस्ट कैन डू एस्थेटिक्स. तो वो सुबह 4 बजे उठकर पैम्फलेट बांटना वो हमारा पहला स्टार्टअप था. सो ऐसे चैलेंजेस आते गए तो अगला जो चैलेंज था वो सेल्फ इन्वाइटेड था. सो आई हैड शिफ्टेड माई सेल्फ फ्रॉम द कम्फर्ट जोन ऑफ डेंटिस्ट्री इन टू द चैलेंजिंग वर्ल्ड ऑफ एस्थेटिक्स. So aesthetics mein guys, I have been sculpting faces, I have been working on the faces, I've spent my life making the people more beautiful, more younger. For that aesthetics, I had gone to the world's best institutes in USA and UK. और जब मैं वहाँ से वापस आई, I was fully confident to work for aesthetics to my patients. और जब मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया, but people in India, my own community of dentists, they were against me. They said, being a dentist, तुम botox लगाओगी, being a dentist, तुम fillers लगाओगी, this is not possible. Dentistry में aesthetics का word कोई नहीं है. But I had to prove myself. और बहुत सारी criticism आती रही. और फिर एक समय ऐसा आया जब which could have shaken anybody's confidence. It was 2015, a circular, a notice, which was spread in all the WhatsApp groups, on all the Facebook groups, and the notice said, Dr. Mridu, you cannot practice facial aesthetics. That was a circular from the Dental Council of India. और उस समय मैं टूट गई थी क्योंकि माई फ़ोन डिड नॉट स्टॉप रिंगिंग. कभी कहीं से फ़ोन आ रहा है, डॉक्टर मृदु, वो सपोर्ट के लिए फ़ोन था, वी आर विद यू, यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. कुछ ने बोला, डॉक्टर मृदु प्लीज़ अपना क्लिनिक अभी थोड़ा टाइम के लिए बंद कर दो, बिल्कुल भी एस्थेटिक्स में मत जाओ, बोटॉक्स फिलर छुपा दो.
तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स उस दिनों में हुए, और फेसबुक ग्रुप मेरा भरा हुआ होता था। इवन जो 32 दांतों की सेवा जिसमें 3 लाख डेंटिस्ट है, उसमें भी मेरा सर्कुलर फ्लोट कर रहा था। तो वो वाली घड़ी थी जो किसी को भी तोड़ देती, लेकिन जो टूटने पर भी ना टूटे उसे हिम्मत कहते हैं। और इस तरह स्ट्रगल्स पे स्ट्रगल आते रहे, चैलेंजेस पे चैलेंजेस आते रहे, बट आई वेंट ऑन, आई केप्ट ऑन गोइंग। तो एक और चैलेंज आया। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे हॉल में कितने लोगों ने मूवी इंग्लिश विंग्लिश देखी है? ग्रेट। सो हु वाज द हीरोइन इन दैट मूवी? श्रीदेवी, राइट. So beautiful Shridevi, she played the role of a शशि. तो शशि जो थी वो अपना किरदार इस तरह निभाती थी कि उसने अपनी पूरी फैमिली को जोड़े रखा, पूरी फैमिली के लिए सारी उम्र काम किया, बच्चों के लिए काम किया, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी इच्छा थी कि उसको इंग्लिश सीखनी थी। कि उसने एक एज में आके 40 अबव एज में आके उसने एडमिशन लिया। वो बहुत अनकंफर्टेबल हुई क्योंकि उसके साथ के जो लोग थे वो बहुत छोटी उम्र के थे। तो एक अनकंफर्टेबल जब आप स्टेप लेते हो तो, लेकिन आप कुछ कर जाते हो तो आपको बाद में जाके बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी ही कुछ कहानी मेरी भी थी। तो क्या कभी किसी ने सुना है कि यूजी के 20 सालों बाद किसी ने पीजी की हो? तो ये मेरी स्टोरी थी कि यूजी के 20 सालों बाद मैंने एडमिशन लिया पीजी ऑर्थोडोंटिक्स में, और उस समय पर मेरा बेटा भी उसी समय कॉलेज बीडीएस में एडमिशन लिया उसने। तो ये हमारी जर्नी थी जिसमें हम एक घर के ही लोग डेंटल कॉलेज में इकट्ठे जा रहे थे। और जब मैं क्लासरूम में बैठती थी तो मेरे साथ के जो बच्चे थे दे वर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई एज, और जो कुछ टीचर्स थे वो मुझसे भी छोटे थे। तो मैंने भी वो डिस्कम्फर्ट वाली स्टेज क्रॉस की और पीजी ऑर्थोडोंटिक्स करके अपना एक ड्रीम को पूरा किया। और उस इंसिडेंस ने मुझे सिखाया, ड्रीम्स डू नॉट रिटायर, योर डिज़ायर्स डू नॉट एक्सपायर, and your timing is always right if your intentions are right, and manifestations do come into reality. So as I stepped deeper into aesthetics, there were many people whom I were mentoring. तो मेरी कम्युनिटी बढ़ती गई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे, जो डेंटिस्ट थे, वो इंजेक्टर बनते गए। ऐसे बहुत सारे अदर कम्युनिटीज़ के लोग भी मेरे पास सीखने आए। तो हमारे इंजेक्टर्स की कम्युनिटी बहुत सारी बढ़ गई। तो जब आप किसी चीज़ में ग्रो करते हैं तो उतनी ही आपको रेजिस्टेंस भी मिलती है। तो ऐसे और लोग हमें रेजिस्ट भी करने लगे। जैसे मेरे ऊपर सर्कुलर आया, ऐसे बहुत सारे और लोगों के ऊपर भी सर्कुलर आया। तो अब करना क्या था? अब वी वर द पायनियर्स, वी हैड इंट्रोड्यूस एस्थेटिक्स इनटू आवर कंट्री। तो हमें तो एक जिम्मेदारी उठानी थी। तो हमने क्या किया, मैंने पूरे इंडिया के नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जितने भी इंजेक्टर्स थे, जितने भी मेंटर्स थे, उन सबको कॉल किया, उन सबको जोड़ने की कोशिश की। बिकॉज मुझे लगता था यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो सब ने एक कोलैबोरेशन की। तो अब वो कंपटीशन के ऊपर हमारा कोलैबोरेशन आ गया। तो हम सब ने, जब हम इकट्ठे जुड़े तो हमारी एक यूनिटी दिखाई देने लगी, और हमने एक आवाज़ उठानी शुरू की कि एस्थेटिक्स शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डेंटल करिकुलम। तो ये सारी जब यूनिटी हुई तो दैट यूनिटी गेव बर्थ टू द फेशियल एस्थेटिक्स एसोसिएशंस ऑफ डेंटल सर्जन्स, दैट इज फैड्स. So today, standing here before you as the president of FADS, I am truly honored to say that we are taking this facial aesthetic subject into the curriculum of dentistry, and we are in talking terms with the higher authorities to make this facial aesthetics as an officially recognized subject of the dentistry. So when I talk about AIM, that is actions, intentions and manifestations, I am not speaking any theory. I am speaking out of my live experience. I acted, I intended, and the manifestations happened. So if I could start my journey from a small room, one dental chair, one old table, so you, each one of you sitting there, can rebuild your career, your confidence, your identity at any stage of life. And every face has a story, and each story deserves to shine. Thank you so much.